Dear students, this is the first online video for 11th Science, and in this video today we will discuss about the general ideas regarding the chemistry. और ये जो जनरल आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे ये आपको 2 साल में 11th और 12th में यूज़ करना है, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक ड्यूरिंग द ऑनलाइन classes. Now see the very important term in a chemistry, that is called a chemical bond. This chemical bond, we will discuss the definition for the chemical bond. Chemical bond means the force of attraction which binds the atom together in a molecule. That force of attraction is said to be the chemical bond. यानी this is nothing but it is a force of attraction. ये force of attraction है between the atom so that it remain in a molecule. यानी किसी molecule में किसी atom को एक साथ रखने के लिए जो force of attraction यूज होता है, that force of attraction is called a chemical bond. हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे AB is a molecule and A and B are the two atoms. Between A and B a bond is present. ये एक बॉन्ड प्रेजेंट है ए और बी के बीच में. दिस बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस. वन बॉन्ड ऑलवेज कंटेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड. ये 2 एटम को ए एंड बी को आपस में बांध के रखेगा इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ए बी. This is nothing but it is called a chemical bond. Now, this chemical bond contains 3 important types. So, next we'll discuss about the types of chemical bond. There are the 3 important types for the chemical bond. The first one is called a ionic bond. Second is called a covalent bond, and third is called a coordinate bond. Ionic bond, covalent bond, and a coordinate bond. Now we will discuss one by one what is this ionic bond, covalent bond, and coordinate bond with their example. The first is called a ionic bond. The bond which is formed by the transfer of electron from one atom to another. यानी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बॉन्ड तैयार होगा, दैट बॉन्ड इज सेड टू बी द आयोनिक बॉन्ड. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी एक एटम, जैसे ए बी अगर कंपाउंड है हमारा, फिर से ए एंड बी, तो एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उन दोनों के बीच में बॉन्ड तैयार होगा. दैट बॉन्ड इज सेड टू बी द आयोनिक बॉन्ड. कंसिडर दैट ए डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो ए इज सेड टू बी द डोनर एटम which donates the electron, and B is said to be the acceptor atom which accept the electron.
यानी ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बी को और बी उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होगा और ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से जो बॉन्ड तैयार होगा, दैट बॉन्ड इज अ सेड टू बी द आयोनिक बॉन्ड। अब हमको ये पता है कि जनरली मेटल donates the electron and non-metal accept the electron. Metal donate the electron, non-metal accept the electron. जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो हमेशा मेटल डोनेट करेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, तो हमेशा मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट ऑलवेज अ आयोनिक बॉन्ड। अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि वेयर द आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन वन मेटल एंड अनदर non-metal, because metal has a tendency to donate the electron, non-metal has a tendency to accept the electron। इसीलिए इसका एग्जाम्पल रहेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na is a metal, chlorine is a non-metal, sodium, that is Na, donate the electron and chlorine accept the electron। because of that the bond is formed between this sodium chloride or sodium and chlorine is said to be the ionic bond। This ionic bond is also known as electrovalent bond। This is the second name to the ionic bond, and the ionic or electrovalent bond present in the compound, that compound is said to be the ionic compound or electrovalent compound। Hence sodium chloride is a ionic or electrovalent compound। Another example is potassium chloride, KCl। potassium is a metal and chlorine is a non-metal। Again between these two atoms the bond is present, that bond is formed by the transfer of electron from potassium to chlorine, hence it is said to be the ionic bond। So this is about the ionic bond। The next way to discuss, that is said to be the covalent bond। Covalent bond is always formed by the sharing of electron between the atoms। Covalent bond is always formed by the sharing of electrons between the atoms। यानी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट या कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन जस्ट शेयर होगा, and by sharing of electron the bond is formed, that is said to be the covalent bond। Such type of bond is always formed between two non-metals। दो अगर नॉन मेटल्स रहेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, that always is said to be the covalent bond। And the compound which contains the covalent bond, that compound is said to be the covalent compound। हमेशा ये बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा। दो नॉन मेटल्स ही हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड तैयार होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, और जहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। सो दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द एग्जांपल। इसका एग्जांपल लेंगे हम H2 मॉलिक्यूल, dihydrogen molecule। What is the name? Dihydrogen molecule। Now see that hydrogen contains
one electron in the outermost shell. Second hydrogen again contains one electron in the outermost shell. अगर इनका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले हाइड्रोजन के लिए दिस इज द न्यूक्लियस and this is the first shell where it contains the electron. This is a second hydrogen atom and this is the electron. This is H, this is H. दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? This is the first hydrogen, this is a second hydrogen, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे आपस में शेयर किए जाएंगे and because of that a bond is formed between, that is said to be a covalent bond. Generally this type of bond is always present between the two non-metals and the compounds are said to be the covalent compound. Another example for this is a HCl, HBr. ये जो compounds है these are also said to be the covalent compound. Next, third type is said to be the coordinate compound, coordinate bond. This is a special type of covalent bond. This is a special type of covalent bond. Why it is called a special type of covalent bond? Because here again the two electrons which is required for a bond formation is shared between the two atoms. यानी यहाँ भी जो दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बिटवीन टू एटम्स वो फिर से शेयर हो जाएंगे, लेकिन जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. जैसे अभी हमने देखा कि एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके कारण यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हुआ. लेकिन यहाँ कैसे होगा कि दोनों में से जो कंबाइनिंग एटम है उन दोनों में से कोई भी एक ही एटम वो इलेक्ट्रॉन पेयर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लेंगे तो दैट इज कॉल्ड NH3 अमोनिया plus H plus. See here, this NH3 is an ammonia molecule where nitrogen atom contains the lone pair of electron. This is said to be the lone pair of electron. Lone pair of electron means the pair of electron which is present in outermost shell. यानी ये लोन पेयर ऑफ ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होती है. जैसे नाइट्रोजन 2,5 ऐसा अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स. दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, सो दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें से 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कैसे? दे आर कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज अ पेयर्ड वन, एक पेयर तैयार करेगा. जनरली अकॉर्डिंग टू द VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी only unpaired electron from the outermost shell can take part in a bond formation. तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन में प्रेजेंट, वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड तैयार करेंगे? दैट इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड. इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस 3 हाइड्रोजन. बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है विच फॉर्म अ पेयर, दिस पेयर doesn't use in the covalent bond formation, it remain as it is. और ये अगर as it is रहेगा तो this is said to be the lone pair of electron. This is called a unused pair of electron.
दिस इज सेड टू बी द अनयूज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो अनयूज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज सेड टू बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सच इलेक्ट्रॉन पेयर इज यूज इन द कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन। फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये H+ है तो इट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है H+ के पास। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H+ के पास इट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन। फिर से ये दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और H+ के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, या वो शेयर करेगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर मैंने बताया था कि दोनों में से अगर एक ही एटम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दैट बॉन्ड इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए यहाँ जो ऐसा बॉन्ड तैयार होगा बिटवीन नाइट्रोजन and this hydrogen, this is nothing but it is said to be the which a coordinate bond. Coordinate bond is again represented by the dash, but the difference is that at the center it contains the arrow pointed from donor atom to acceptor atom, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास, उसने वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए है, हाइड्रोजन को, इसीलिए नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, इसीलिए ये जो एरो है दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, और इसके वजह से ये आयन तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन, एंड ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द coordinate bond, which is also known as a special type of covalent bond. So this is all about the chemical bond, their types with the example. Dear students, in next video we'll discuss about the some again general ideas regarding the chemistry. Thank you.